Okay, since everyone is here, we'll start. सब आ गए इसलिए हम शुरू करेंगे. So, based on whatever we discussed in the previous class, is there any question? पिछले क्लास में हमने जो भी चर्चा की है उसके आधार पर कोई सवाल है? About power of agreement. How to pray in agreement. It's very simple, just how the scripture says, right? Like in Matthew chapter 18, verses 18 to 20. तो ये जैसे बहन पूछ रही है कि कैसे सहमति की प्रार्थना करें, वो थोड़ा समझाइए करके. So तो बहुत ही there, साधारण है. मत्ती के 18 अध्याय के 18 के वचन में जो लिखा है उस प्रकार से. okay, so So there we see Jesus said, if any two of you agree touching one thing, then God will do it for you. वहाँ Any two persons. यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम में से कोई भी दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. So actually that is very encouraging. असल में वो जो है बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात है. Because he did not even say three, he said just two. तो यीशु मसीह ये भी नहीं बोल रहे कि तीन भी नहीं बोल रहे, केवल दो जन. See, in families, that's why you should marry a believer. इसलिए जो है आपको जो है विश्वासी के साथ शादी करना चाहिए. And Bible says don't be unequally yoked with an unbeliever. तो इसलिए बाइबल बताती है कि अविश्वासी के साथ जो हमें मत जुतो. Apart from all the other challenges that will be there, when it comes to prayer, where will be the agreement if two of them are not believers? बाकी सारे चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन उसके अलावा यदि दोनों विश्वासी नहीं है तो सहमति की प्रार्थना कहाँ होगी? The flip side, if both husband and wife are believers, उसके बदले में पति और पत्नी दोनों ही विश्वासी है, when they pray in agreement, there is power. जब वो दोनों सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो उसमें सामर्थ्य है. So that's an example, just two people in a family setting, just the spouses also, it is so powerful. तो एक साधारण उदाहरण है, पति पत्नी भी अगर वो सहमत से प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही सामर्थ्य है. And even church, we can just agree with any one person and pray. कलीसिया में भी अगर एक सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो Okay. So it's not connected question, no brother. It's not connected to the topic what we are discussing now. It's not connected. Another topic. Yeah. So the answer is, Jesus said, whatever I see the Father do, I do. पूछ रहे हैं कि बेथेस्दा के कुंड में जो है इतने सारे बीमार थे, लेकिन यीशु मसीह जाकर सिर्फ एक व्यक्ति से पूछ रहे कि तुम चंगा होना चाहते हो क्या? तो उनको डाउट, संदेह है, लेकिन क्यों करके मैम बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब भी कहा कि जो कुछ पिता करते हैं वही मैं करता हूँ करके उनको करते हुए देखकर. He was obedient to what the Father was showing him. तो यीशु मसीह जो है पिता जो दिखा रहे उसका आज्ञाकारी थे. That is why only this person he went to and he healed him. इसीलिए जो यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास गए और उसको चंगा किए. So we can even say Acts chapter 3. तो हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय का भी बोल सकते हैं. There Peter and John they go, there's a man who's lame by birth 40 years. वहाँ पतरस और यूहन्ना जाता है, वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति 40 साल से अपना जन्म से ही कभी वो चला, जन्म का लंगड़ा था वो. That also we can ask question. उसके लिए भी हम सवाल पूछ सकते हैं. Jesus went to the temple so many times. यीशु मसीह जो है उस मंदिर पे कई बार गए हैं. Why is he still lame? तो भी वो चंगा नहीं हुआ तब. Because Jesus should have healed him, right? तो यीशु उसको चंगा कर सकते थे. But in Acts 3, Peter and John are ministering to that man.
लेकिन प्रेरितों के काम 3 में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ही उस व्यक्ति का सेवकाई कर रहे हैं। Maybe that was the time when God wanted to minister the miracle to this lame man. तो हो सकता है कि वही परमेश्वर का समय था उस लंगड़े व्यक्ति के लिए सेवकाई मिलने की। So is that fine, brother? Okay, we'll take it outside the class. Okay, fine. Yeah, any other questions? कोई और सवाल? Authority, gateway, and what else was it? Some new हमने जो भी things. अभी सीखे इससे पहले के घंटे में, Okay, so since there are no questions, we'll go to chapter 13. सवाल नहीं है इसलिए हम जो है पाठ 13 में जाएंगे। Here we will talk about using our or exercising our authority to cast out demons. तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा अधिकार को दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रयोग करने के बारे में। So how many of us have cast out demons हम में so से far? अब तक हम में से कितने लोग शैतान दुष्ट आत्मा को निकाले हैं? Some of us, yes. Praise God for that. Praise. How many of us have cast demons out? हम में से कितने लोग शैतान को निकाले हैं? Good, good. So we've all had some experience. That's great. That's wonderful. आप लोग के पास कुछ अनुभव है, बहुत ही अद्भुत बात है। So now we can learn few more things. How to do it in an effective way. तो हम जो है और कुछ चीजों को सीखेंगे कैसे प्रभावशाली रूप से उसे कर सकते हैं। So usually when we engage in this kind of spiritual warfare, we are setting an individual free. तो आमतौर पे जब इस प्रकार के हम सेवकाई में हैं तो हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को हम जो है छुटकारा दिला रहे हैं। But there are two terms that they use in deliverance. लेकिन छुटकारे की सेवकाई में जो है 2 शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं। One is called ground level warfare. एक जो है जमीनी स्तर युद्ध, Second is called strategic level warfare. और दूसरी जो है रणनीतिक स्तर का युद्ध। So ground level warfare is setting people or individuals free. जो जमीनी स्तर का जो युद्ध है वहां जो है एक व्यक्ति को छुड़ाया जाना। So whatever we are going to discuss today, it will fall in that ground level. तो जो कुछ भी हम चर्चा किए हैं वो सारे जो है ये जमीनी स्तर का युद्ध है। But when we are going to pray for cities and nations, जब हम जो है शहरों और देशों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, we call that as strategic level warfare. हम उन चीजों को जो है रणनीतिक स्तर के युद्ध कहते हैं। Because we are overcoming the demonic forces at the highest level. क्योंकि हम जो शैतानी शक्ति को जो है उच्च स्तर में विजय को प्राप्त कर रहे हैं, And that will need a different approach. और उसके लिए जो है अलग प्रकार की एक हमारी कार्य होने की जरूरत है। So normally corporate prayer, when everyone comes together and prays, that is helpful for strategic level. तो आमतौर पे जो है लोग मिलकर समुदाय के रूप में प्रार्थना करना जो है रणनीतिक स्तर के युद्ध के लिए सहायता देती है। But ground level, even a single believer can also be involved. तो जमीनी स्तर का युद्ध जो है एक अकेला विश्वासी भी उसको कर सकता है। So before talking about the steps, ये कदमों के बारे में बात करने से पहले let's see how Jesus did it. तो आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे किए हैं। So here in English on page 61, we have how Jesus did. तो हमारे पास जो हिंदी में 59वें पेज से लेकर शुरू हो रहा है, यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस सेवकाई को किए थे। So when we are casting demons out, we have to follow his example. तो यदि हम दुष्ट आत्मा को निकालने जा रहे हैं तो हमें जो यीशु मसीह का जो उदाहरण है उसका अनुसरण करने की जरूरत है। So we know that he cast out an unclean spirit from a man. हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाले। He cast out many spirits called legion from like a demon possessed man. तो एक जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के अंदर से बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को उन्होंने निकाले। And there are so many other incidents, all of them are listed in the notes. और बहुत सारे ऐसे घटनाएं इस किताब में दी गई है। So it is good for us to open these passages and meditate. तो इन घटनाओं को साथ ही साथ उसका वचन दिए गए, तो इसको क्या हम
बाइबल खोलकर इन वचनों को पढ़ें, मनन करें तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। See, if we want to experience healing, take healing passages and meditate. यदि आपको चंगाई की जरूरत है, चंगाई के वचनों को ले और उन वचनों को मनन करें। If we want to experience deliverance in our lives or minister deliverance, take passages about deliverance and meditate. यदि हमारे या दूसरों के छुटकारे की सेवकाई के लिए आप छुटकारे के वचन को लें, उसको मनन करें। So usually in our normal Bible college time, we used to give some time to go through all this and then we will discuss. तो आमतौर पे बाइबल कॉलेज में हम जो है इसके लिए थोड़ा समय देते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। But because now we don't have time, I am only going to share some key points. तो अभी हमारे पास ऐसा समय नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कुछ जो मुख्य बातों के बारे में बताऊंगी। So in these incidents, we see that whenever Jesus cast a demon out, he did it with authority. तो इन सारे घटनाओं में हम देखते हैं जब कभी यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाले, उन्होंने अधिकार के साथ इसका सेवा की। He never asked any demon, please, can you come? Please, can you come out? तो वो किसी भी शैतान के पास जाकर उन्होंने ऐसा विनती नहीं की या गिड़गिड़ाए नहीं कि क्या कृपया तो निकल आएगा, Would you like to come out? क्या तुम निकल आना चाहता है? No. नहीं, He went with great authority, commanded, and every time the demon left. यीशु मसीह जो बड़े अधिकार के साथ गए और आज्ञा दिए, जब भी आज्ञा दिए वो तुरंत ही निकल आया। Today, as believers, when we are casting demon out, we should be firm and display authority. तो आज हम विश्वासी होने के नाते जब दुष्ट आत्माओं को निकालते तो हमें स्थिर होने की जरूरत है और अपना अधिकार को प्रदर्शित करने की जरूरत है। When demons tried to speak, he said, I don't allow you to speak. Be quiet. जब शैतान बोलने लगे तो यीशु मसीह ने उसे अनुमति नहीं दी कि बोलने के लिए। So now when we do it and demons talk a lot, we can also say, I don't allow you to speak. Be quiet. जब हम छुटकारे के कार्य करते हैं तब भी अगर शैतान बोलते हैं तो हमें भी अनुमति नहीं देना है और बोलना है कि चुप हो। Jesus cast out demons by the anointing of the Holy Spirit. We also have to do the same thing. यीशु मसीह जो है अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाले, तो हमें भी अभिषेक के द्वारा ही करना है। So Jesus never felt scared. He depended on the Holy Spirit and he made sure that people were free. तो यीशु मसीह कभी भी डरे नहीं, वो जो है पवित्र आत्मा पर निर्भर थे और इस बात से निश्चित थे कि लोग जो है छुटकारा पाए। He was confident while casting demons out. दुष्ट आत्मा को निकालते हुए बहुत ही दृढ़ थे, आत्मविश्वास के साथ थे। We need to follow the same example and the pattern. हमें भी जो है इसी उदाहरण को और इसी नमूने को पालन करने की जरूरत है। What is very important when we cast demons out? जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है? Very good. Yes, faith. Without faith, we cannot cast demons out. हम बिना विश्वास के दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं सकते हैं। You remember yesterday we discussed in Matthew 17 when the disciples could not cast demons out. What did Jesus point to? तो आपको याद है जब हम कल चर्चा किए तो मत्ती 17वां अध्याय में जब Your unbelief. चेलों ने नहीं निकाल पाए तो क्या बोले यीशु मसीह ने? Yes. Why? Because of your unbelief. तो यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे विश्वास के गति के कारण। But how much faith is required? लेकिन कितना विश्वास की जरूरत है? Mustard seed राई faith. के दाने के बराबर Yes. विश्वास। So even if we have this much faith, we can cast demons out. यदि हमारे पास इतना भी अगर विश्वास होता तो हम जो है दुष्ट आत्मा को निकाल सकते So हैं। that is a big lesson we learn from Jesus. ये है यीशु मसीह से इतना बड़ा एक पाठ को हम सीख सकते हैं। He was always full of faith. यीशु मसीह हमेशा विश्वास से भरे हुए थे। When we face these challenges, when we have to cast demons out, जब इस प्रकार के हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें इस दुष्ट आत्मा को निकालना रहता है, it does not always come with like prior information. और ये जो है पहले से इसका सारे जानकारी के साथ नहीं आते हैं हम। We face them suddenly. Most of the time, suddenly we have to cast a demon out. तो ये अचानक ही होते हैं, अधिकतर समय जो है अचानक ही आपको दुष्ट आत्मा को निकालना पड़ता है। But what is required, even when we experience those suddenlies, is we are full of faith. तो किस बात की जरूरत है? अगर अचानक भी हमें निकालना पड़ रहा है तो क्या जरूरी है? हमें जो विश्वास की जरूरत है। So it's important to be full of faith all the time. इसलिए जो है हमेशा विश्वास से भरे रहना जरूरी है। So Jesus ministered with faith. You and I also must minister with faith.
यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा सेवकाई की, इसलिए आपको और मुझे भी विश्वास के द्वारा ही सेवकाई करना है। Now let's learn some general instructions about deliverance. आइए हम जो छुटकारे के बारे में सामान्य निर्देशों को सीखते We've हैं। learned from the life of Jesus. हम यीशु मसीह के जीवन से सीखे हैं। We can also learn from the lives of ministers of God. हम जो है जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं। So based on all the experiences, we have put together a couple of points here. तो हम जो है उनके वो सारे अनुभवों के द्वारा जो है सब साथ मिलाकर हम कुछ चीजों को रखे हैं। So the first important point is to have genuine love for the person who is troubled by demon spirits. तो सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं, जो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रस्त है उसके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। The motive in our heart should be to set that person free. हमारा हृदय का इरादा ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है छुटकारा पाए। It should not be that we are casting the demon out so that others can call us like a good pastor or a good believer. ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम दुष्टात्मा को इसलिए निकाल रहे हैं कि लोग जो है हमें कह सके कि बहुत ही अच्छा पास्टर है, बहुत ही अच्छा विश्वासी है। Or we want to add them to our numbers and say, oh, this is the 100th deliverance or this is the 200th deliverance. या तो हम इसलिए ना छुटकारा दें कि हमारी छुटकारे की सेवकाई की संख्या बढ़ाने के लिए पहले से हमने इतना निकाल चुके हैं, अभी ये निकालेंगे तो 100 होगा या 200 होगा। So the motivation is key. तो हमारा जो प्रेरणा जो है वो है कुंजी। We are casting the demon out because we have genuine love for the person and we want to see them set free. तो हम इसलिए उस व्यक्ति के अंदर से वो दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें से वो छुटकारा पाए। So this is the first and most important thing. ये है पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात। Now the next thing that helps is if we can spend some time in meditation of the word, prayer and fasting. और दूसरा जो है आप जो है प्रार्थना में, वचन में और उपवास में समय बिताएं। As I told you, it's not always possible, right? जैसे मैंने कहा कि हमेशा संभव नहीं है। Now if you have that kind of time, you can say bring the person on Monday and then you fast and pray till Monday and then you go for the session when you will cast the demon out. यदि आपके पास समय है तो आप बता सकते हैं कि आप उनको सोमवार को लाना और उस बीच में आप प्रार्थना कर उपवास कर तैयार कर फिर उनके लिए आप सेवकाई कर सकते हैं। Okay, so whenever possible we can do this process of fasting and worship, prayer and all that. जब कभी भी संभव है हम प्रार्थना करना, उपवास करना, आराधना करना, इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। The next important thing is to always be confident. और दूसरा मुख्य बात जो है हमें हमेशा हियाव के साथ या तो आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए। Demons want to intimidate us. शैतान जो है हमें धमकाना चाहेंगे, डराना So चाहेंगे। when we go to cast the demon out, sometimes they may say things which upset us or make us scared. या जब हम दुष्टात्मा को निकालने जाते तो दुष्टात्माएं जो है कभी हमें दुखी कर सकती हैं, तो हमें डरा सकती है। They can ask, who are you? Why are you coming? जो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप कौन है, क्यों तुम आए हो। I know you are very junior. Something they'll say, they'll upset you. तो कुछ भी वो बोल सकता है, तुम तो बहुत छोटे हो, इस प्रकार से। Or they'll say, we have been here for 20 years. या तो ऐसा कहें कि हम तो यहाँ पर 20 साल से हैं, Nobody was able to cast us out. हमें कोई भी निकाल नहीं सका। Now you have come, अभी आप आए हो, we will not go. हम नहीं जाएंगे। Sounds scary, right? थोड़ा डरावना है। And or they'll say, I'm not one, I am 500. या तो Or we are 500. या तो ऐसा कहेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम 500 लोग हैं। So when we listen to that, we will think, oh my goodness, 500, how will I cast them out? तो 500 सुन के हम सोचेंगे अरे बाप रे 500 कैसे हम इसको निकालेंगे। So this is a trick that demons have. तो ये जो है शैतान के पास की चालाकी है। So no matter what they say, we should be strong and confident. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं, हमें जो है हमारा विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। Don't get scared. डरे ना। Okay. And apart from this, we must understand that our authority does not flow
in our loudness. तो और एक बात समझने की जरूरत है, हमारी अधिकार जो है हम कितने ऊंचे आवाज निकाल रहे हैं उस पर नहीं है। Sometimes in deliverance session, everybody is screaming. कभी कभी जो ये छुटकारे की सेवकाई में जो है हर एक जो है चिल्ला रहे हैं, Demon possessed person is shouting, screaming, जो दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति है वो चिल्ला रहा चीख रहा है, and the believer or the pastor who is casting demon out also is screaming, shouting. और जो विश्वासी है पास्टर है जो निकाल रहे हैं वो भी चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं। So the more they shout, it's not that authority is there in how loud we can shout at the demon. ये ऐसा नहीं कि हम कितना जोर से शैतान के ऊपर चिल्ला रहे हैं उस पर अधिकार प्रवाह होती है। Even if you say softly, तब भी जब आप एकदम आराम से कोमलता से बोलेंगे, I command you to come out in the name of Jesus. मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में निकल आ। It's not loud, but it still carries authority. ये ऊंची आवाज से तो नहीं है, तब भी ये जो है परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलती है। Authority comes from how much we are submitted to God. ये अधिकार जो है वहां से आती है कितना हम परमेश्वर के लिए अधीन किए हैं। So no need to make every deliverance session, very loud, noisy. इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक छुटकारे को जो है आवाज वाला चिल्लाने वाला ऐसा ही बनाए। Now the next thing is, we don't have to display like arrogance when we are casting the demons out. तो हम जो उसके साथ एक व्यवहार करते समय ताने मारना या उसको बहुत ही घमंडी तौर से बात करने सारा ना करें। Okay, so if we speak arrogantly or if we challenge the evil spirits. यदि हम जो है उसको चुनौती देने के लिए इस प्रकार से बात करते So हैं, if the spirit says, wait, I will destroy your car. तो यदि आत्मा कहता है कि मैं तेरे कार को नष्ट कर दूंगा, You should not say, okay, do and show. तो आपको ऐसा नहीं कहना, ठीक है करके दिखाओ। There is no need to argue and challenge each other. तो कोई जरूरत नहीं है कि वाद विवाद करें या तो एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। So even if spirits are saying all these things, you don't take it so seriously. तो अगर ये आत्माएं ऐसे बोल रही है तो इसे गंभीर रूप से लेने की जरूरत नहीं है। We can say something like, my life is protected by the blood of the lamb. तो आप ऐसा One कह statement. आप एक वाक्य से ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जीवन जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित है। So why do demons speak like this? क्यों शैतान ऐसा बात करते हैं? Reason is they want to distract us from the main purpose. क्योंकि शैतान चाहता है कि हम जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसमें से हमारा ध्यान भटकना चाहता है। We went there to set the person free. हम जो इस व्यक्ति को छुटकारा दिलाने के लिए वहां गए हैं, And now when we are talking to the demons, a lot of other things are happening. अभी जो हम शैतान से बात कर रहे हैं बहुत अलग अलग चीजें हो रही है, And we got distracted. तो हम जो है हमारा ध्यान जो है भटक गया है। So we keep the focus on deliverance and as quick deliverance as possible. तो हम जो है अपना केंद्र को जो है छुटकारे पर रखेंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी छुटकारा दिला सके। Okay. Next thing is, when we are in a deliverance session, जब हम छुटकारे की उस सेवकाई में रहते हैं, it may take little bit time. वो थोड़ा समय ले सकता है। Okay, so I know Jesus did it immediately. One command and demons came out. हम जानते हैं कि यीशु मसीह जैसे ही आज्ञा दिए तुरंत ही शैतान निकल आया। But we notice in all practicality, it takes maybe few minutes, hours, sometimes days also. तो व्यवहारिक तौर पे जो है कभी कुछ मिनट्स लगते हैं, कुछ दिन भी लग जाते हैं। So what to do in the session? लेकिन उस सेवकाई के उस समय में क्या करना है? So we can keep speaking about the cross. हम जो है क्रूस के बारे में बात करते रह सकते We हैं। can talk about the victory of the cross. हम क्रूस के विजय के बारे में बात कर सकते We हैं। can talk about the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर सकते हैं। We can declare God's word over the life of the individual. तो उस व्यक्ति पर जो है हम परमेश्वर का वचन की घोषणा कर सकते हैं। We can also sing songs. हम जो एक गीत गा सकते हैं। So maybe you can just sing a song where it says the blood of Jesus is so powerful. तो हम ऐसा गाना गा सकते हैं, प्रभु यीशु का लहू सामर्थी है,
So when we are doing these things, it is weakening the hold of the demons on the person. जैसे हम ऐसा करते हैं तो ये जो शैतान की जो पकड़ है उस व्यक्ति के ऊपर वो ढीला हो जाता है। Yesterday I also said repeating things, no, like when you say hallelujah, hallelujah, or blood of Jesus, it may not necessarily, directly affect the deliverance process. तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि यीशु मसीह का लहू या तो हालेलुया हालेलुया बोल के दोहराना जो है वो इस प्रक्रिया को सीधा असर नहीं देगी। So instead of that, you can declare about the cross, the blood of Jesus, sing songs, and exalt the Lord Jesus. इसके बजाय आप जो है क्रूस के बारे में कह सकते हैं, गीत गा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू का घोषणा कर सकते हैं, तो Yes. इसके द्वारा हम कर सकते हैं। And when these things are going on, one person can issue the command to the demons. जब ये सब हो रही है तब एक व्यक्ति जो है उस छुटकारे की आज्ञा दे सकता है। The next important thing is the cooperation of the person is necessary. जब हम सामूहिक तौर पे इस कार्य को कर रहे हैं तो एक दूसरे की जो सहभागिता बहुत ही जरूरी है। So if we have a person who does not want to be set free, यदि हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो छुटकारा नहीं पाना चाहता है, when you talk to them, they say, "No, I don't want the demons to leave. तो अगर उनसे आप बात करें तो बोले कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि शायद दुष्ट आत्मा मुझे I'm छोड़कर happy. चले जाए। I'm happy like this. मैं इसी प्रकार से खुश हूँ, I want them to be there." मैं चाहता हूँ कि वो वहीं रहें। Then we should not even try casting the demon out, तब जो है हमें दुष्ट आत्मा के निकालने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, because demon will not come out. क्योंकि दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। Willingness of the person to experience change is necessary. जो वो व्यक्ति के अंदर उस बदलाव की इच्छा रहना बहुत ही जरूरी है। The person who does not want change, 5 people can pray, 50 people can pray, no use. जो व्यक्ति बदलाव को नहीं चाहता उस व्यक्ति के लिए 5 लोग प्रार्थना करें, 50 लोग प्रार्थना करें, किसी काम का नहीं है। So in the case of deliverance, it will not work, और छुटकारे की सेवकाई में ये काम नहीं करेगी, because person is not willing. क्योंकि व्यक्ति नहीं चाहता है। Okay, so if they are not willing, you can try to counsel them and see whether you can do it on another day. But again and again, if they are not willing, just pray for them and let them go. यदि एक व्यक्ति अगर इच्छा नहीं रखता तो आप उससे बात करें, किसी और दिन कोशिश करें, और बार बार वो इच्छा नहीं रखता तो बस आप प्रार्थना करके छोड़ दीजिए। The next necessary thing is to identify open doors. तो अगली जो है जो खुले दरवाजे को पहचानना, That can happen only if we talk to the person, ये तभी होगा हम उस व्यक्ति से बात करेंगे, or if we talk to the close, people who are close to them. या तो उनके जो नजदीकी रिश्तेदार है उनसे बात करने के द्वारा। So I can share one story. मैं एक कहानी बताऊंगी। So once we went for one large youth conference. हम एक बार एक बड़ा यूथ कॉन्फ्रेंस में गए थे। So that time, like we were all part of the youth, and pastor was also there, and then we all went as a team. तो हम उस समय जो है हम युवाओं के उस सदस्य में उस वहां थे, उस समय पास्टर भी थे, हम सब एक टीम के तौर पे वहां गए थे। So after one of the sessions, lot of people started manifesting. तो एक सत्र के बाद जो है बहुत सारे दुष्ट आत्माएं जो प्रकटीकरण करने लगी। The volunteers brought them backstage quickly, otherwise the next session will be disturbed. So they said, okay, you do the deliverance in the back of the like behind the stage. तो वहाँ जो वॉलंटियर थे वो सब उन सबको जो प्रकटीकरण कर रहे थे उन सबको पीछे के ओर लेके आए, क्योंकि अगर यही करते रहेंगे तो अगला जो सेशन है उसमें देरी हो जाएगी। And since there were lots of people, even our team, they told all of you also please come and help to cast the demons out. तो वहाँ इतने सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, इसलिए हमारा जो टीम थे हमें भी बुलाए थे कि आप लोग भी आओ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। So I was with two other friends of ours from church. तो मैं और मेरे 2 मित्र थे जो हमारे कलीसिया के, and we were commanding one girl was demon possessed, so we were commanding. तो एक लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, उसको मैं आज्ञा दे रही थी। Yeah, commanding, nothing is happening. आज्ञा देते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। Girl is same only. वही लड़की थी। Okay, and so we were discussing among ourselves, maybe I'm not saying it correctly.
तो हम आपस में बात कर रहे थे, शायद मैं ठीक से नहीं बोल रही हूँ। Should we say in the name of Jesus come out or come out in the name of Jesus? तो हम बोल रहे थे कि यीशु मसीह के नाम से निकला बोलना है या निकला यीशु मसीह के नाम से बोलना है। Something we are doing wrong, it's not working. कुछ तो कहने में गलत है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। And then we got scared. तो फिर हम डर गए। Then we were telling, no, you command, no, you command. So we're तो just, उसके बाद हम एक दूसरे से कहने लगे कि तू आज्ञा दे, तू आज्ञा दे। and it was just not happening. तो ये बस हो ही नहीं रहा था। Then we thought best we will call pastor. तो हमने सोचा कि बस पास्टर को ही बुला देते। And pastor was casting out demons, and because we were struggling, he came. तो पास्टर और कहीं दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो आए। Then he told all of us, all of you calm down, come to the side. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सब शांत हो जाओ, आप सब इस तरफ आ जाओ। And then he asked, who has come with this girl? तो उन्होंने उस लड़की से पूछे कुछ। And her mother was there. उसकी माँ उसके साथ थी। And they were speaking in a particular language, so they called the translator. तो उन्होंने कुछ दूसरा भाषा बोल रहे थे, तो अनुवाद करने वालों को उन्होंने बुलाए। And then for some good 5-10 minutes, pastor is asking something, they are saying something, so he was just quietly listening. तो 5 मिनट तक पास्टर कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, पास्टर कुछ बता रहे हैं, तो हम चुपचाप सुन रहे हैं। Okay. After all this, then he spoke. He made them pray. तो इसके बाद जो है पास्टर उनसे बात किए और उनसे प्रार्थना करवाएं। And then he said, in the name of Jesus, I command you to come out. तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल आओ। Demon came out. तो दुष्ट आत्मा निकल गए। We were so shocked. हम बहुत ही चकित हो गए। We are already doing for half an hour. Come out, come out. Nothing is coming out. हम पहले आधा घंटे से निकल आ बोल रहे, कुछ नहीं निकल आ रहा था। So it was really like eye opener. तो वो असल में जो है एक आंखें खुल गई इस प्रकार से था। Then we understood what he was discussing. तो उसके बाद हमें ये समझ में आया कि वो किस बात में चर्चा कर रहे थे। He asked them, have you dedicated your child to any spirit? तो उन्होंने उनके माँ से पूछा कि क्या अपने बच्चे को अपने किसी आत्मा को समर्पण किया क्या? So the mother said, yes, something like I have dedicated her to the goddess of beauty. तो उनके माँ ने बताया कि हाँ, सुंदरता की देवी जो है उसको मैंने अपनी बेटी को समर्पण किया है। So then he told them, now that you are a believer, you have to break that dedication. You have to break it. तब पास्टर ने उनको बताया कि अभी आप विश्वासी बन गए हो, आपको इस समर्पण को तोड़ने की जरूरत है। So he made them break it. तो उन्होंने उनसे उसको तोड़वाया। So that's why they were saying something. He told them, okay, say with me, I break or I renounce this dedication in the name of Jesus. तो पास्टर को कहते हुए और दोहरा रहे थे, पास्टर ने बोले कि मैं यीशु मसीह के नाम से इस समर्पण को तोड़ रहा हूँ। So whenever we are breaking, we have to speak loudly because demons have to listen. जब भी हम किसी भी समर्पण को, किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं या नकार रहे हैं, तो हमें जोर से बोलने की जरूरत है, क्योंकि शैतान को सुनने की जरूरत So है। if you say in your mind, demons can't hear. यदि आप मन में, आपके दिमाग में बोलेंगे तो शैतान नहीं सुन पाएगा। So he had to make them say all those things, like I break this dedication, I belong to Jesus, all those things. तो पास्टर ने ये उनसे बुलवाया कि मैं इस समर्पण को तोड़ रही हूँ और मैं अभी यीशु मसीह की हूँ। So after breaking, the demon has no legal right to stay. तो ये समर्पण को तोड़ने के बाद शैतान के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था वहां रहने का। That is why later when he said come out, it came out. इसलिए उसके बाद जब पास्टर ने निकलने के लिए आगे थी तो निकल आया। Okay, everyone is understanding? आप लोग समझ रहे हैं? Yeah. So identifying what has happened is necessary. We can't simply sit and command. इसलिए क्या हुआ था इस बात को पहचानना जरूरी है, केवल बैठकर आज्ञा देना ही काफी नहीं है। So what is the entry point? How did this start? ये प्रवेश द्वार क्या है, कैसे ये शुरू हुआ, How to break it? कैसे इसे तोड़ना है। Once we do that, then when we command, it will come out. जब पहले हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम आज्ञा देते हैं तो आएगा वो। So remember always that we have to identify the entry points. इससे याद रखें कि हमें जो है हमेशा जो प्रवेश द्वार है उसे पहचानने की जरूरत है। Sometimes demons work through the things that people put on their body.
कभी कभी शैतान जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, जो लोग जो अपने शरीर में पहन लेते हैं उसके द्वारा, So some jewelry, some thread, something, whatever they put on their body. कुछ गहने हुआ, कुछ धागे हैं, जो कुछ भी उन्होंने अपने शरीर में लगा डाल कर रखा है। So even after we cast the demon out, if that object is there, demon will go back. तब भी जब शैतान को उनके अंदर से निकाल देते हैं और वो जो पहने हुए वैसे के रहे, तो शैतान फिर से उनके अंदर जाएगा। So when we are observing this, we can also encourage them to remove that. जब इसको हम देखते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये निकालें वो। But one thing is, don't force them to remove the jewelry. लेकिन एक बात जरूरी है कि उन्हें जो आप जबरदस्ती ना करें कि वो अपना गहना निकालें। We should speak to them and inform them in such a way that they themselves remove it. हमें उनसे बात करना है, इस प्रकार से उन्हें समझाना है वे खुद ही वो निकाल दें। Okay, so now again, this will take some time. They have to say, okay, I'm ready to remove. तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा उन्हें, मैं करूंगा करके वो खुद ही कहने के लिए। So don't force them. उन्हें जबरदस्ती ना करें। Now the next thing that demons will do to distract us is they will request. तो और एक चीज जो वो हमें भटकाने के लिए जो कहेंगे वो है हमसे निवेदन करेंगे वो। So they will request, they will say, I want to drink Pepsi. तो ऐसा बोलेंगे कि मुझे पेप्सी चाहिए। Or they will say, I want to eat okay, biryani. Give me biryani. या तो ऐसा बोलेंगे कि मुझे बिरयानी दो। Demons do these things शैतान ये करते हैं because it's a distraction. क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाला चीज है। Then we'll be ordering biryani, Pepsi for demons. तो हम जो शैतान के लिए जो है बिरयानी पेप्सी को ऑर्डर करने लगेंगे। Don't get distracted. आप अपना ध्यान भटकने ना दें। So we should understand, person is not asking, demon is asking. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति नहीं मांग रहा है, उसके अंदर जो शैतान है वो मांग रहा है। So no need to give. तो इसलिए उसको देने की जरूरत नहीं है। But if the person is asking, if the person says, I'm so thirsty, give me water, we can give. यदि वो व्यक्ति मांग रहा है कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, तो हमें मुझसे पानी दे सकते हैं। Sometimes the person will be pure vegetarian. कभी कभी वो व्यक्ति जो है शाकाहारी हो सकता है, But he will say, give me chicken biryani. तो वो ऐसा कह सकता है कि मुझे चिकन बिरयानी देना। So demons do all these things. तो शैतान ये सारे काम करेंगे, But it's a distraction. लेकिन ये जो है ध्यान भटकाने वाली बात है। Okay? So don't even get into it. तो इसलिए उसमें ना पड़े। And next is to find out the name of the demon. तो शैतान के नाम को जानने के लिए, when casting demon out, they will ask, who are you? तो दुष्टात्मा को निकालते हुए वो पूछेंगे कि तुम कौन हो। Is this necessary? Is this helpful? क्या ये जरूरी है? ये हमारे लिए सहायता करेगी? No. Okay. Yeah. So Jesus also, when he said, the demon said, we are legion. They gave the name. तो यीशु ने भी जब सुने कि वो उन्होंने बताया कि हम लीजियन हैं। So asking the name is okay. नाम पूछना ठीक है, Because when we know the name, we can understand how the spirit is working, where it came from. जब हम इस नाम को जानेंगे तो तब जान पाएंगे कि ये आत्मा कैसे काम कर रही है और कहाँ से आई है। And that will help us to cancel dedication, consecration. तो वो जो है हमें इस बात में सहायता करेगी कि समर्पण है या तो आप अर्पण किए हैं, इसको रद्द करने के लिए। So it's okay. We can ask, who are you? If necessary, to find out entry point, we can ask, who are you? तो ये प्रवेश द्वार को पहचानने के लिए या जानने के लिए हम ऐसा पूछ सकते हैं। But too much of talking is not required. लेकिन बहुत सारा बात करना जरूरी नहीं है, Because it's not necessary for the deliverance process. क्योंकि ये छुटकारे की प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक नहीं है। So, sometimes people let the demon talk. I came from here, I have done this, I have done that, and then one discussion is going on. तो कभी कभी क्या लोग जो है शैतान को बोलने देते हैं, तो वो अपना बोलने ही लग जाता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये करता हूँ, वहां रहता हूँ, तो जो चर्चा जो है चालू रहती है। But even when people are listening,
how is it helpful? तो जब लोग उसको सुन भी रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? It does not build faith. वो जो है विश्वास को नहीं बनाएगी। So our intention should be identify the entry point and finish as quickly as possible. हमारा इरादा ये होना चाहिए कि उस प्रवेश द्वार को पहचाने और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको खत्म करें। So no need to get into conversation, discussion with demons. तो शैतान के साथ बातचीत या वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। We can also depend on the Holy Spirit to identify the demons. हम जो है दुष्ट आत्माओं को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रह सकते हैं। We know there is a gift of the Holy Spirit. हम जानते हैं वह पवित्र आत्मा का एक वरदान है, It's called discerning of spirits. आत्माओं को परखना। And through that we can identify if demons are there. तो उस आत्मा के परखने के उस वरदान के द्वारा जो है हम पहचान पाएंगे कि शैतान वहां है। So depend on the Holy Spirit and Holy Spirit will guide us. तो हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। There is no formula like, I do like this only, do like that. There is no formula for deliverance. छुटकारे के सेवकाई के लिए कोई सूत्र नहीं है, इस प्रकार से करो या इस प्रकार से करो। Every deliverance is different. हर एक छुटकारा जो है अलग अलग है, And we can learn and build our faith through them. हम उससे सीख सकते हैं, उसके द्वारा हमारा विश्वास को बढ़ा सकते हैं। So I remember once we were casting demons out of one boy. मुझे याद है कि मैं एक बार हम लोग जो है एक लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। There were many spirits. उसके अंदर बहुत से आत्मा थे। So after casting all the spirits out, we had confusion. Have all the spirits come out or are there a few left? तो कुछ आत्माएं आने के बाद हमारे अंदर ऐसा एक भ्रम था कि सारे आत्माएं आ गई या थोड़ा आत्मा अंदर रह गई। So one of my friends from church, she was also there with us. तो मेरा कलीसिया में से एक जो मेरा सहेली है वो भी मेरा साथ थी। So she was telling, no, there are 3 more. I can see them. तो वो बता रही थी कि नहीं और 3 है, मैं उन्हें देख सकती हूँ। And she was explaining also how they are and all. So we were like, what? How can you see? तो उसको बता भी रही थी वो कैसे है क्या है, तो मुझे लगा कैसे तुम देख सकती हो। But it was as if God opened her spiritual eyes and she can see the demons, how many are there, who is there. She had the information. लेकिन ऐसा है कि परमेश्वर ने उसके आत्मिक आंखों को खोल दिए, तो वो देख पाई कि कितने हैं, कौन है, कैसे हैं, तो वो समझा सकी। So this also can happen. ये भी हो सकता है। Through our gift of the Holy Spirit, we can see, we can know exactly what is going on inside the person. तो हम पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा जो है हम देख सकते हैं और असल में क्या अंदर हो रहा है इस बात को हम जान पाते हैं। Okay, are you all interested learning something? Shall I go on? क्या आप सब Yes. रुचिपूर्ण है सीखने में कि हम आगे बढ़े? Okay, great. All right. So the next thing is, don't be distracted by the manifestation. ये जो प्रकटीकरण दुष्ट आत्मा करती है उसको देख के आप ध्यान ना भटकाए। So manifestation means, like I told you that day, somebody is become like a snake on the floor. तो प्रकटीकरण यानी मैंने उस दिन बताया था, कोई तो भी सांप के तरह फर्श में पड़ देते, Or they start shouting, या तो चिल्लाने लगते हैं, they start shaking, अपने आप को हिलाते रहते हैं, or do different face expressions. या तो चेहरे पे अलग अलग अभिव्यक्ति को लाते हैं। Sometimes what happens is, they'll start foaming at the mouth. या कभी कभी हम उनके मुंह से जाग निकलती है। So these kind of things will happen. इस प्रकार की चीजें होंगी। But now we know it's just manifestation. So we will focus on casting the demon out. तो अभी हम जानते हैं कि ये जो है प्रकटीकरण है, हम केवल जो दुष्ट आत्मा को निकालने में केंद्रित रहेंगे। Sometimes what the person is experiencing can be Holy Spirit. It can also be demon spirit. कभी कभी वो व्यक्ति जिस चीज का अनुभव कर रहा है वो पवित्र आत्मा भी हो सकता है या तो दुष्ट आत्मा भी हो सकता So है। person may tell you, I'm feeling very hot. I feel like fire. तो व्यक्ति ऐसा बता सकता है कि मैं बहुत ही गर्म महसूस कर रहा हूँ, आग जैसे महसूस कर रहा Or हूँ। they'll say, my stomach is burning. या तो वो कह सकता है कि मेरा पेट जल रहा है। So is that demon spirit burning or Holy Spirit burning? We need discernment by the Holy Spirit. हमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस परखने की जरूरत है कि वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर जलन हो रही है या दुष्ट आत्मा के द्वारा उसके अंदर जलन हो रही है। It could be this or that.
ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है. And the next important thing is identify whether the shaking, the behavior, is it demon or is it the person themselves? या तो अगली जो एक बात हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो शरीर को हिला रहे हो, जो व्यक्ति खुद अपने आप को हिला रहा है, या तो ये शैतानी है. So yes, demons can shake and give manifestations, शैतान भी हिलाएंगे और प्रकटीकरण कर सकते हैं. but sometimes people only will shake कभी कभी वो व्यक्ति खुद ही वैसे ही हिलता रहता है, because maybe they have seen other people shaking, so it is a learned behavior. तो या तो दूसरों को ऐसा हिलते हुए उन्होंने देखे, उनको देख के इन्होंने सीखे और ये हिल रहे हैं. So maybe person will fall down, but they are only falling. It is not Holy Spirit, it's not demon spirit. यदि एक व्यक्ति फर्श पे गिर जाता है तो वो अपने आप खुद ही गिर रहा है, ना ही दुष्ट आत्मा के कारण गिर रहा है, ना ही पवित्र आत्मा के कारण गिर रहा है. So we need to know, तो हमें जानने की जरूरत है, because if that person only is behaving like that, how much ever you cast out, nothing is there, nothing will come out. यदि वो व्यक्ति खुद ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप कितना भी निकालने की कोशिश करें नहीं निकले, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर. So we have to identify whether it's human behavior or if it is really demonic spirit. हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है, ये व्यक्ति का व्यवहार है या शैतानी कार्य है. We should work as a team. हमें जो एक समूह के रूप में कार्य करना In है. deliverance, it is always helpful if more than one person is there, 2 or more. ये छुटकारे की सेवकाई के लिए यदि 2 या उससे ज्यादा लोग रहे तो ज्यादा अच्छा है. And when we are working as a team, one person should command, all other people should be praying. जब समूह के रूप में हम सेवकाई कर रहे हैं तो एक को आज्ञा देना है, बाकी सबको प्रार्थना करना है. Because demon listens to the command issued in the name of Jesus. क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है यीशु मसीह के नाम में दी गई आज्ञाओं को सुनते हैं. So if 2-3 people are saying, one person is saying, come out. अगर 2-3 लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं कि निकाला, Second person is saying, I bind you. और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे बांधता हूँ, And third person is saying something else, calm down, be quiet. या तीसरा कोई बोलता है चुप हो जा, Demon शांत is हो जा. like, who should I listen? Everybody is commanding me. तो शैतान ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि हर एक आज्ञा दे रहा, मैं किसका सुनूं. So when we are doing in a team, only one person should command and everyone else should support the person who is commanding. तो जब हम एक समूह के तौर पे कार्य सेवकाई का कार्य कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को आज्ञा देना है, बाकी लोगों को जो आज्ञा दे रहा है उसका समर्थन करना है. Okay, so these are all the general instructions. ये सारे जो है एक साधारण सा निर्देश है. Now, when we do the deliverance, it can be one step or few steps. अभी जो जब हम छुटकारे के सेवकाई करते हैं तो एक कदम में हो सकता है या तो कई कदम हो सकते हैं. So now we will look at the deliverance steps. अभी हम जो है छुटकारे के कदम के बारे में, तरीकों के बारे में देखते When हैं. Jesus cast demons out, it was always one step. जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाले तो हमेशा ही एक कदम का था. But we need few more. लेकिन हमें जो है और कुछ जरूरत पड़ेगी. So there is a man of God by the name of Pablo Bottari, तो वहाँ एक परमेश्वर का जन थे जिनका नाम पाब्लो बोटारी है, and he has engaged in 30,000 deliverances. तो उन्होंने जो है 30,000 छुटकारे के सेवकाई में काम किए. And after looking at 30,000 deliverance sessions, he put down 10 steps. तो ये 30,000 छुटकारे के कार्य करने के बाद उन्होंने 10 कदम 10 जो प्रक्रिया है उसके बारे में उन्होंने दिए हैं. And these are helpful for us. ये जो है हमारे लिए सहायतापूर्ण है. So we can look at these 10 steps and we can maybe later we can take questions. ये 10 चरणों को हम देखेंगे और उसके बाद हम शायद सवाल लेंगे. So these start on page 65. हिंदी में ये 63वें पेज पर है. First one says that we should give the individual priority. पहला ये बता रहा है कि व्यक्ति को प्राथमिकता दें. So that means we are not giving importance to the demon, but we are giving importance to the person. इसका मतलब जो है हम शैतान को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम जो व्यक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं. So always be very encouraging to the person.
हमेशा ही उस व्यक्ति के लिए जो है प्रोत्साहन का कारण बने। Maybe that person has gone to many people and never received freedom. हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है कई सारे लोगों के पास गया हो और वो चंगाई को प्राप्त नहीं किया And हो, he's coming to you. और वो आपके पास आ रहा है। You can encourage him and say, don't worry, brother. Jesus always sets people free. We will pray, you will be set free. तो आपको उसको प्रोत्साहन देना है, चिंता करना करे ना भाई, यीशु मसीह जो है हमेशा ही छुटकारे देते हैं, आप चंगे हो जाओगे। Be loving towards the person. और जो उस व्यक्ति के प्रति आप प्रेम पूर्वक रहें। We can be firm against the demon, हम शैतान के विरुद्ध में जो है स्थिर रह सकते हैं या तो एकदम कठोर रह सकते but हैं। you know sometimes what happens when demon possessed a person comes, they will beat, they will push. जो ऐसे लोग करते हैं, जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आते हैं तो उन्हें धक्का देते हैं। But when we are doing such things, we are hurting the person, right? ऐसे धक्के देने का कारण क्या, हम क्या करते हैं, वो व्यक्ति को हम चोट पहुंचा रहे हैं। So we should not hurt the person. हमें जो उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना And चाहिए। even when demon possessed people come, we speak very rough, rude to them. और ऐसे भी है कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आते हैं तो उनके साथ बहुत ही निर्दयी से बात करते हैं, बहुत ही कठोर रीति से बात करते हैं। Yeah, we understand we have to be firm with the demon, but be loving with the person. हमें जो शैतान के साथ तो बहुत ही कठोर रहना है, लेकिन व्यक्ति के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहना है। So that is the first step. वो है पहला कदम। Okay, I think we are at the end of the second session. तो हम दूसरा सत्र के अंत में आ गए So हैं। let's take a break. आइए ब्रेक लेते हैं। We'll quickly, when you come back in 10 minutes, we will finish the teaching and then we'll have just questions. तो वापस आने के बाद 10 मिनट के लिए हम ये सिखाएंगे, उसके बाद सवालों को लेंगे। Thank you. See you all धन्यवाद। after the break.